A very challenging section in IPMAT is VARC. Let's see how to solve it, how to crack it, how to master it. Hi, I am Ajay from LPT. Let us see what is the only way to clear VARC section in IPMAT. First of all, let us understand what are the core areas of assessments. VARC evaluates verbal ability, grammar, reading comprehension. These are the areas जो assess होते हैं. Grammar, vocabulary, even critical reasoning aspect is also checked in the form of skill checking. Questions की variety, इसी से related सारे questions होंगे. Make sure कि आप जो है difficult level के questions को भी साथ साथ practice कर रहे हैं जब आप IPMAT के लिए practice कर रहे हैं. So this is something which is very very important. Let's see how to build a strong foundation for VARC. Vocabulary is the first thing that you need to pay very very high importance to. Make sure that you are learning every day 8 to 10 new words, writing them somewhere, using flashcards and other aspects, other types of apps to revise them on a daily basis, on a regular basis. You are adding few and you are revising previous ones. So ideally what you should do is कि पिछले एक हफ्ते के जितने भी वर्ड्स आपने ऐड किए हैं वो डेली बेसिस पे आप रिवाइज करते रहिए, डेली ऐड करते रहिए और पिछले 8th डे का आप छोड़ते जा सकते हैं. देन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क विद योर ग्रामर, मास्टरिंग द बेसिक्स. Once you are done with these two, automatically your reading speed is going to increase because you have a knowledge of words and your grammatical understanding of sentences is good. So आपकी reading speed improve होगी. Make sure कि आपकी reading speed you attain at least 350 words to 300 to 350 or 400 words per minute reading speed. Active reading, reading के लिए अलग से आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग का स्पेसिफिक ध्यान रख रहे हैं, वहीं से वोकैबुलरी आपको मिलेगी. दैट मीन्स न्यू वर्ड्स जो आप यू विल बी एक्सपोज टू, दैट यू विल बी लर्निंग थ्रू रीडिंग. डिफरेंट पैसेज टाइप्स की प्रैक्टिस, वेरीड टॉपिक्स, very important aspect that you ensure that the topics that you are covering in your reading is varied. So for that you can make use of magazines, online, either could be online or offline, or newspapers. This is the best source of your reading. These are the two. Question strategy, अलग अलग तरह के questions आते हैं RC में और उनकी strategy अलग अलग रहती है. तो किस तरह का question है उसके हिसाब से आपकी approach of reading change होगी. So we'll teach you once you are here or you are following us, will teach you कि किस तरीके से आप different type of questions को कैसे tackle करें. Time management in examination as well as in preparation, both the things are required. It's not कि सिर्फ time management exam में ही follow होगा, test के time पे ही follow होगा. Time management is also very important when you are preparing yourself for it. डिफरेंट सोर्सेज, अच्छी मैगजीन्स, एऑन करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप एसेज पढ़ सकते हैं. एऑन में भी एऑन आइडियाज़ करके उसका एक सेक्शन है जहाँ पर शॉर्टर पैसेजेस हैं, बिकॉज यूजुअली एऑन पर लंबे पैसेजेस हैं. सो दिस टाइप ऑफ लेंथ और दिस लेंथ ऑफ पैसेजेस आर नॉट यूजुअली कवर्ड इन योर एग्जामिनेशंस. एरर स्पॉटिंग, वर्बल एबिलिटी को भी साथ साथ कीजिए. ग्रामर के क्वेश्चंस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका इंप्रूवमेंट होगा. पैराजम्बल्स, की थिंग इज लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स, लुक फॉर द ओवरऑल थीम. दैट विल हेल्प यू इन डूइंग क्वेश्चंस ऑफ ऑड वन आउट ऑल्सो. सॉल्व पैराजम्बल क्वेश्चंस इन 1.5 to 2 minutes. जो भी टीटा क्वेश्चंस हैं, अगर टाइप इन दी आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके लिए टाइम कम दीजिए. व्हेन आई से कम दीजिए बिकॉज दे आर लाइक गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ नो बॉल, जिसपे कि अगर आप रिपीट है, नो बॉल के बाद आपको जो एक बोनस बॉल मिली है, क्योंकि उसमें आप आउट नहीं हो सकते. सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग देयर. सो वंस यू प्रैक्टिस डूइंग देम फास्टर, इफ यू गेट देम राइट यू आर सेविंग टाइम एंड दैट्स योर बोनस मार्क्स. इफ यू आर गेटिंग देम रॉन्ग देयर इज नो पेनल्टी. सो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. यूजुअली उल्टा हो जाता है. सो व्हाट द स्टूडेंट्स डू, दे थिंक कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दे स्पेंड मोर टाइम टू इट. Rather it should be that you spend less time for it, right? Effective practice करने के लिए mock test, most of us think कि mock test we should take at the end of the
preparation or just before the examination. That's a wrong thing to do. Your mock test in terms of full length, sectional, topic wise, that should be part of your preparation in a routine में आपका part होना चाहिए. Every time you finish a topic, make sure that you are practicing the questions online. प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट हैं, डिफरेंट टॉपिक टेस्ट हैं, उनको साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, राइट. डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए उसका. इट्स नॉट ओनली प्रैक्टिस, एनालिसिस. इट्स नॉट, सी, प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. इट इज़ नॉट टेस्टिंग यू आपने कितना कर लिया. इट इज़ लाइक गिविंग यू स्किल ऑफ टेकिंग टेस्ट. सो डिटेल्ड एनालिसिस विल हेल्प यू इन दैट वे. ट्रैक प्रोग्रेस. मेक श्योर कि आपके मार्क्स की प्रोग्रेस हो रही है, एक्यूरेसी बढ़ रही है, and the number of correct that you are marking is gradually increasing, right. Further, examination से पहले तो of course you got to take lot of mock tests. usually students लेते ही हैं, but एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा जो प्रिपेयर कर रहा है, वो पहले से ही शुरू कर देगा mock test की प्रैक्टिस. As I told you, टाइम मैनेजमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन को, दैट मीन्स VRC की प्रिपरेशन को अपने डेली रूटीन में अलग से टाइम एलोकेट कीजिए. मेक श्योर कि आपकी जो प्रोफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम एलोकेट कर रहे हैं. इफ़ यू आर नॉट गुड एट, और इफ यू आर स्टिल, यू फील आर स्टिल नॉट परफॉर्मिंग गुड एट VRC, मेक श्योर कि आप उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं. यूजुअली उल्टा हो जाता है, जो सेक्शन हमें अच्छा लगता है, जिसमें मार्क्स आ रहे होते हैं, हम ज़्यादा टाइम वहाँ पर देते हैं. मेक श्योर कि आप इसका रिवर्स की प्रैक्टिस करें. फर्दर, कोई भी प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी में द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Many of time we commit a mistake that we tend to solve most of the time difficult things, and that doesn't build two things. One, neither your skill nor your confidence. So there should be a balance of doable and very difficult to do type of questions. Doable questions should be around 65 to 70%, and very difficult to do should be something around 30 to 35%. So what will happen? जितने डूएबल क्वेश्चंस आप करते जा रहे हो, उस रेंज के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो रही है, स्किल डेवलप हो रहा है, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है. जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, जिनका परसेंटेज शुड बी अबाउट 1/3, दैट विल हेल्प यू टू पुश फॉरवर्ड योर लर्निंग कर्व, राइट. मेक श्योर कि ये बैलेंस आप ज़रूर मेंटेन करें. डोंट गेट स्टक. टिपिकली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए भी और एग्जामिनेशन में भी अगर नहीं आ रहा है, लीव इट. एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, हमारे माइंड का एक डिफ्यूज मोड होता है ब्रेन का, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपने अगर करके छोड़ भी दिया है, दैट मीन्स अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है और आप आगे चले गए, तो डिफ्यूज मोड में माइंड जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. वंस यू गो बैक टू द क्वेश्चन, मैनी अ टाइम यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो ट्राई दिस टेक्निक, दिस वर्क्स वेरी वेल, राइट. एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए. अटेम्प्ट जो हैं आपके अगर ज़्यादा हैं लेकिन एक्यूरेसी कम है, सो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि ओवरऑल स्कोर आपका कम आ जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी शुड बी अराउंड 70 to 80% मिनिमम की रेंज में रहनी चाहिए. एंड देन लेट्स सी द टेक अवे ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज कि आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है और स्ट्रेटेजिक अप्रोच. एज आई टोल्ड यू, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस कैसा होना चाहिए, और पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं या पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, एंड द टाइम मैनेजमेंट. वंस यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू सक्सीड. टेक केयर, बाय बाय.